वेलकम टू एचआर स्कूप। आज का ये एपिसोड मैं एक ऐसे गेस्ट के साथ करने वाली हूँ जिनको मैं पिछले 3 महीने से एचआर स्कूप पर बुलाने के लिए चेस कर रही हूँ। ही इज़ none other than Mr. Yogesh Sharma, who's having 20 plus years of experience around employer branding and recruitment talent acquisition. I would say ये पूरा एम्प्लॉयर ब्रांडिंग और रिक्रूटमेंट टैलेंट एक्विजिशन की जो हम बात करते हैं, इसका पूरा डिस्कशन, इसका पूरा तड़का आपको इस पूरे पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। एंड मैंने सुना है इनका जो इन एम्प्लॉयर के अराउंड और एम्प्लॉयज़ के अराउंड जो हैंडल करने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी इम्प्रेसिव है और इनका एक अपना अलग ह्यूमर है, वो आपको इस पूरे पॉडकास्ट में देखने को मिलेगा। लेट मी वेलकम योगेश सर ऑन एचआर स्कूप। हेलो सर। Hey, thank you, Deepika. हाय। Thank you for having me here. थैंक यू। काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन था, मतलब मैंने भी पहली बार सुना। Humor is a great angle. नो आई नो दैट बिकॉज जितना ज़्यादा टाइम होता जाता है ना, यू नो, सिंस आई एम चेजिंग यू लास्ट 2 to 3 months, सो आप उतना ज़्यादा अपने गेस्ट को जान जाते हो, Okay. right? So as I read lot of about you and I heard lot of things about you, so this was something very natural and this was something which is real. Okay, I look forward to it. I hope Thank कि you. whatever you said, I would be able to prove. Yeah. Thank you, sir. But मैं since I don't know your journey, I don't know you know how the talent acquisition journey have started. आप कहाँ से इतना सारा experience, 20 साल का journey, I know that's too difficult to summarize, but मैं फिर भी चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, ऑडियंस को थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं, जिससे बहुत सारे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, द वे यू नो शेयर योर इनसाइट्स और इनपुट्स। या So Deepika, I'll keep it short because 20 साल हैं, काफ़ी टाइम निकल चुका है. But yeah, starting is important क्योंकि I was a techie. I did my masters in computers. उसके बाद मैं गुड़गांव गया. I was working for IBM soon after my MCA. MCA मैंने इंदौर से ही किया. आप भी इंदौर से हैं. वाओ। So वो शहर है जहाँ काफ़ी रहा हूँ मैं. करीब I think it's interesting to bring in a quick story here, like which I experienced. कि जब मैं वहाँ काम करता था IBM में, तो मेरा जो ऑफिस था it was on 6th floor. ओके So this was in Gurgaon. And usually first और second floor पे recruitment floor था. ओके So मैं जब नीचे आता था और हम देखते थे कि look, we were techies like jeans, t-shirts and we are just moving around with really shabby clothes. बट आप जब फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे आते थे एंड देन यू सी रियली गुड लुकिंग पीपल एंड देयर आर सो मेनी एप्लीकेंट्स लाइनिंग अप और वो उनका सीवी देख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं और हमने भी उसी तरीके से वहाँ पे एंट्री ली थी और उनको देख के बड़ा फैसिनेटेड फील होता था कि ये क्या है. एंड सिंस आई वाज अ रीसेंट पास आउट, सो आई हैड लॉट ऑफ कनेक्ट्स विद माय बैचमेट्स एंड अदर कॉलेजेस. So as soon as I got to know there are so many openings and you can make more money when by referring internally, so I started referring people, and I figured out that I made more money out of referral what I was getting in my salary, and my salary was 17,500 at that time in 2003, and I really loved it. So then I made friends in recruitment. So I had few recruiters who were my friends. When I spoke to them, after some time I got to know that they are only giving us 25 to 35,000 as a referral. Okay. But vendors who are sending similar kind of profile, they are getting 1 lakh, 2 lakh, 1.5 lakh kind of money per candidate. And that was like I was just 22 at that time, and this kind of money was big money, and I was really, and I felt like, this is what I really want to do. And then what I did is I left the company. I thought that this is where I should go. I came to Indore, and IBM became my first client, and then there was another company, iFlex, which is now Oracle. They become my another client because they came to Indore for a walk-in, and I got 8 selects in a go, and all were my friends. So I didn't really have to do search and find people. I just got selects and I got my money, which I could have earned in 2 years if I would have been in a job. Wow. So
So I'm sorry, I'm bringing in a money angle here, but this is how I started. I left my career as a techie and I thought it's better to be a recruiter. And then I started in Indore. So it was again a journey where I started my own agency, okay, in 2004 Wow. in Indore, a small a shop, where you have just two people working on a table from a store of my friend. It was like this. But I think 2004 was a good year. 2004, 5, 6, 7, 8. I think those were few of the best years in recruitment. Naukri was very new at that time, and and there were 3 people in 2004. 2006 we were 85 people, and this is how we have grown. In terms of recruitment, we did it till 2009, and then at that later I got married, and then my wife started something. I joined her in her startup. We together we did it till 2014. Sold it off. Then we thought that it's high time. We need to learn more. Fine, we know how to do recruitment, campus recruitment, everything. We did everything, different industry. Wow. So I thought that I should get into a job to learn more. Then I moved into the jobs, and this is a journey from the last 7 or 8 years in different roles. So today with eClerks, managing talent acquisition for their investment banking, and also managing certain other initiatives of eClerks, especially employer branding, talent branding, and also campus recruitment. Wow. As I can see, like what I can relate from your journey is, by heart you are salesperson. Is it true, or I mean? So if you are in recruitment, so since I am into more of a talent branding and marketing, as you see, sales is a outdated word. It's a Yeah, marketing is a word, right? of course. So clearly I started with sales, because that's how it began. And I think if you look at that 10 years back or 5 years back, most of the time it is actually being said. Okay, if you are in recruitment, you are in sales. Correct. Right. If you don't know how to sell, you don't know how to recruit. Wow. So that was always there. But I always believe that now we are moving from sales to marketing. And this is where we are. The way other sales function have moved to marketing now. Wow. Yeah. Super. So, as you said, employer branding, one side, what I understand, but I would like to understand from your perspective what it is exactly, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एम्प्लॉयर ब्रांडिंग एग्जिस्ट कैसे करता है और होता क्या है एग्जैक्टली? देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर्टिकुलरली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इसको समझने की मुझको लगता है ज़्यादा ज़रूरत है. आई थिंक द फर्स्ट पर्सन जो मुझे लगता है जो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग का इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड हु इज़ द फादर ऑफ एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, ही इज़ नारायण मूर्ति. बिकॉज वे बैक व्हेन वी वर किड्स, आई थिंक द ओनली कंपनी वी न्यू आईटी में वो इन्फोसिस थी. हमें ये भी नहीं मालूम था इन्फोसिस करती क्या है. जैसे कि अगर मैं हिंदुस्तान लीवर को देखता हूँ तो मुझे मालूम था इनका टूथपेस्ट आता है, इनका साबुन आता है, इनका ये आता है, लेकिन इन्फोसिस क्या करती है आई नेवर न्यू टिल द टाइम आई गॉट इनटू आईटी, राइट. लेकिन उसके बाद भी इंडिया का बच्चा जानता था कि इन्फोसिस क्या कंपनी है. और अगर मैं गलत नहीं हूँ टिल 2014-15 तक अगर आप इन्फोसिस में हो तो आपकी शादी भी बड़े आसानी से हो जाती थी, राइट. और मैं आई नो पीपल कि जब मैं इंटरव्यूज़ करता था एज अ वेंडर फॉर कंपनीज लाइक TCS, इन्फोसिस, और जब आप उनसे पूछते थे कि भैया आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, देन द क्वेश्चन इज़ कि भाई मैं अगर किसी और कंपनी में जाऊँगा तो मेरी शादी नहीं होगी या मुझे सरकारी नौकरी. सो एंड एक्चुअली दिस इज़ अ ब्रांड. जबकि वर्किंग फॉर एनी अदर कंपनी विच इज़ ऑल्सो इक्वली गुड, राइट, मे बी एमडॉक्स, मे बी कॉग्निजेंट ऑल्सो, though it's a large company, but in terms of brand, they would, like, Cognizant can't beat Infosys in those, particularly those days. So वहाँ से branding जो होती है वो शुरू होती है कि आप किस तरह से अपने खुद को पोजीशन करते हो. और अगर आप उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखोगे एक कॉर्पोरेट के अंदर, तो जितनी अच्छी ब्रांड होती है आप उतना अच्छा टैलेंट को अट्रैक्ट करते हो. उसका एक दूसरा एंगल भी है, पर्टिकुलरली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जब आप बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर्स में हायर करते हो, यू कैन हायर टैलेंट एट मच लेसर कॉस्ट. करेक्ट. लेट्स से आई वाज वर्किंग फॉर थॉमस कुक, राइट.
सो थॉमस कुक ट्रैवल कंपनी, 100 year old कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रांड, राइट, कई सारे बिजनेस में, और हम जिस कॉस्ट पे टैलेंट को हायर करते थे, या वो हमारे यहाँ रिटेन होता था, या रिटेंशन रेट जो थी, इट वाज वेरी हाई. Okay. So every next guy working in Thomas Cook is 15-year-old. Oh. And it's true even for Infosys today, you know. You will see people with 20 or 25-year-old working in Infosys. So that retention part stay because of the brand, because people start associating themselves with the brand. अब उनकी पहचान बन जाती है कि भाई आप कहाँ काम करते हो, मैं थॉमस कुक में काम करता हूँ. अब वो जाके नहीं बोलना चाहते कि मैं किसी स्मार्ट कंपनी में काम करता हूँ, बिकॉज nobody will recognize who they are. True. So brand plays a very important role in people personal life. True. So brand has a lot of value, और एक employer brand जो है वो मुझे लगता है किसी भी employer के लिए बड़ी ज़रूरी होती है. And यूजुअली हम इसको इस तरह से देखते हैं, कई बार लोगों को लगता है कि एक इन्फोसिस जैसी कंपनी ही अपना ब्रांड बना सकती है, पर हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारे, जब हम छोटे शहरों में रहते थे तो वहाँ पे स्टोरीज होती हैं. आप इंदौर से हैं, इंदौर में एक स्टोर है पाकिज़ा. सो पाकिज़ा के बारे में स्टोरीज हैं कि किस तरह से रिटेल में वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, किस तरह से उनका जो ओनर है उनकी हेल्प करता है. Right. ये इंदौर में हर आदमी जानता है कि वो स्टोर का वो आदमी किस तरह से उनकी शादियां करवाता है, Right. उनके बच्चों का ख्याल रखता है, और किस तरह से वो सोशल सर्कल में भी किस लोगों की मदद करता है. और आप खुद भी वहाँ जाओगी, यू विल फील दैट कल्चर. Wow. वो आपको बाहर नहीं आने देगा बिना किसी सामान लिए. आप कहेंगे पैसे नहीं है तो वो आपको गिफ्ट कर देगा. सो वो जो एक उसने एक कल्चर बिल्ड किया है और ब्रांड बिल्ड किया है, तो आज उसे अपने यहाँ हायर करने के लिए या कस्टमर को रिटेंशन के लिए उसको दिक्कत नहीं होती, Okay. बिकॉज उसकी ब्रांड है वहाँ पे. सो मुझे लगता है कि जो एम्प्लॉयर ब्रांड है, अगर आप उसको एम्प्लॉयर पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे, तो दी स्मॉल स्टोरीज, सो मे बी फ्रॉम पाकिज़ा टू रिलायंस. Okay. So maybe if you talk about Reliance, I heard a story from a Reliance very senior executive कि one of my vendor came and he had a heart attack in my office, and the Reliance office took care of this guy end to end. So they took him to hospital. He was a vendor, he was not an employee, but still Reliance company took him to hospital, took care of all the expenses of his treatment, medical care and everything, and they ensured कि जो उसका loss हुआ है because now he is not available and his company would be suffering, they even compensated that loss to that vendor. So these stories stay. So this is how you create a brand. So that's a long, काफी complex चीजें हैं, काफी चीजें हैं इसमें जो एक brand के लिए आपको करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि it's just a name. But the way you explain with the 2 examples, I think that itself explains a lot about employer brand. But do you think, is there any rule book for the employer brand, or thumb rules or some steps so that anybody or everybody can be a brand? Okay, देखिए इसमें भी 2 चीज़ें हैं कि ब्रांड क्यों बनानी है. कई बार ज़रूरत ही नहीं है ब्रांड की, तो आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. Okay. अगर मैं एक चाइनीज़ टॉर्च खरीदने जा रहा हूँ और मेरा पर्पस ही यही है कि मेरे को 3 दिन के लिए कोई टॉर्च चाहिए, I will just go buy any torch, right? I will not look for Everready as a torch. Okay. I will not buy Philips. I will say, just give me a torch which I will use for a while and I will throw it down. So for that company, they don't need a brand. Why should they even focus on working out a brand? They should focus more on their marketing. They should focus more on their sales part. Yes. So recruitment में या employer के साथ भी ऐसा होता है. भाई मुझे अगर ब्रांड बनानी है तो मैं क्यों बनानी है? मुझे हर जगह भी ब्रांड बनानी है ये भी ज़रूरी नहीं है. Correct. जैसे अगर मैं जोमेटो हूँ तो मे बी मेरे 2 एंगल हैं. एक मेरा जो डिलीवरी बॉय है जो मेरे साथ काम करता है, मेरा दूसरा एंगल है जो मेरा टेक टीम है जो मेरे साथ काम करती है. Correct. दोनों ही अलग अलग ऑडियंस हैं, दोनों का वैल्यू प्रपोजिशन अलग है. जो पार्टनर है वो उसका वैल्यू प्रपोजिशन ये है कि मुझे शाम को कितना पैसा घर जाने में मिलेगा, उसको जो बेनिफिट्स हैं वो क्या मिल सकते हैं मैक्सिमम ओवरऑल, वो हमेशा हर चीज़ को उसको क्वांटिफाई करेगा. Okay. क्योंकि उसका जो टच पॉइंट है जोमेटो के साथ वो परमानेंट नहीं है. वो कल स्विगी हो सकता है, आज वो जोमेटो के लिए काम करे, कल वो स्विगी के लिए काम करे, उसके बाद दोनों ऐप हैं. वो कोई है जो स्टूडेंट है जो शाम को 2 घंटे के लिए काम करता है जिससे उसका पॉकेट मनी निकला है, तो वहाँ पे वैल्यू प्रपोजिशन इज डिफरेंट. लेकिन बट व्हेन जोमेटो गोज टू IITs,
तो उसके लिए वहाँ पे ब्रांड बनानी है। तो आपका ऑडियंस अलग अलग है, आपको उस हिसाब से अपनी ब्रांड को क्रिएट करना है, ओके, राइट। और वहाँ से आपको रिक्रूट करना है। तो रिक्रूटमेंट, कई बार आप रिक्रूटमेंट करने के लिए, जैसे जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मूवीज आती हैं मार्केट में, तो कुछ मूवीज होती हैं विच स्टेज, आपको मालूम है भाई, शोले है, कुछ मूवीज हम आपके हैं कौन है, DDLJ, अभी जैसे DDLJ है, 3 इडियट, ये एक ब्रांड है, बन गई है। जैसे आपने ये रोहित शेट्टी की मूवीज हैं, इट्स अ ब्रांड, गोलमाल 3, गोलमाल 2, इट्स अ ब्रांड। सो वो ब्रांड बिल्डअप कर रहे हैं उस पर, उसके इंटरव्यूज देते हैं 1 साल 2 साल आने से पहले ही। लेकिन कितनी सारी मूवीज हैं जो आती हैं और चली जाती हैं, दे मेक मनी एंड दे गो आउट। करेक्ट, वहाँ पे वो ब्रांड नहीं होती, वहाँ पे क्विक मार्केटिंग होती है। सिर्फ 2 वीक के अंदर वो उसका हाइप क्रिएट करते हैं, 2 वीक में ऑडियंस को थिएटर में लेके आते हैं, 3 वीक्स के अंदर वो बाहर हो जाते हैं। अमेजिंग, This is how it works in employer also. So today, if I have a very strong brand for my audience, let's say investment banking, I have a very strong brand among this audience, but suddenly somebody says कि for BPO you recruit another 2,000 people. No, I will not dilute my brand. I will say ठीक है, fine, let it be. In parallel, I'll go with my marketing process. I will run my campaign, hire my BPO audience, bring them inside my company. I'm good. तो अगर कोई इसको समझता है तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी, वो ब्रांड को ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर सकता है कि व्हाई डू दे नीड अ ब्रांड एंड हाउ टू एग्जीक्यूट इट।